Hello everyone, I hope you all are fine. Today we will start Unit 2 Principle of Management. अभी तक हमने Unit 1 पूरा डिस्कस कर लिया है. Now we will start this chapter. In this chapter we will learn about Principle of Management, concept and significance, and scientific management, principles and techniques. First of all, what is the meaning of principles of management? They are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. बिजनेस में बहुत सारे सिचुएशंस आती रहती हैं. अब उन सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें? बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अस जनरल गाइडलाइंस हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट सिचुएशन, हाउ वी विल टेक different decision in different situation. These principles are not ready-made solution. These principles are flexible and changes according to the situation. Now today we are discussing fundamental principles of management. There are 14 fundamental principles of management which is given by Henry Fayol. Now, who is Henry Fayol? He was a famous industrialist of France and he described 14 principles of management in his book General and Industrial Management. And उसने जब ये principle बनाए, he kept two things in mind. Firstly, these principles should not be long and should be suggestive, and only those principles will explain which become applicable in most of the situations. And secondly, these principles are flexible, not rigid, so that they can change according to situation. Later on हम principle discuss करेंगे, then you will know कि ये हमारे principles flexible कैसे हैं. There are 14 principles which is given by Fayol: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual to general interest, remuneration to employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personal, initiative and esprit de corps. Today we will discuss first 8 principles: division of work to centralization and decentralization. Division of work. According to this principle, whole work should be divided into small parts. जब हमारा काम बहुत बड़ा होता है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पर्सन को सिर्फ एक पार्ट देते हैं. पूरा काम एक पर्सन नहीं करता, सिर्फ एक पूरे वर्क का एक पार्ट एक पर्सन करता है. दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क. जैसे कि अगर आपकी कंपनी है, यू हैव अपॉइंटेड सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. आपने और सबका गोल सेम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो दिस इज़ द डिवीजन ऑफ वर्क. जब हमारा काम बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल वर्क विच कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, देयर वी विल नॉट अप्लाई डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क में जब हम वर्क असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स. जो पर्सन जिस चीज़ के लायक होता है, एबल होता है, हम उसको वही काम देते हैं. अगर सपोज कीजिए आपके पास ए पर्सन आया, उसको ऑलरेडी 5 years का परचेज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको परचेज़ डिपार्टमेंट का काम देंगे. और इसमें जो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, वी अचीव स्पेशलाइजेशन. क्योंकि एक पर्सन जब बार बार एक ही काम करता रहेगा तो ही विल बिकम अ एक्सपर्ट इन दैट वर्क. और उससे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी. वर्कर की वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसको अपना वो काम ईजी लगेगा. स्टूडेंट्स, इसको लर्न कैसे करना है? आपने इसके पॉजिटिव लर्न कर लेने हैं. वायलेटिंग इफेक्ट को आपने नहीं लर्न करना, क्योंकि पॉजिटिव अगर आपको लर्न होते हैं तो वायलेटिंग का मतलब उसका आपने अपोजिट लिख देना है. सपोज कीजिए जैसे मैंने इसमें पॉजिटिव था कि वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क यूज़ नहीं करते तो एफिशिएंसी डिक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी. Second is authority and responsibility. According to this principle, authority and responsibility should go hand in hand. Authority and responsibility हमारी साथ साथ चलती हैं. It means जब हम किसी पर्सन को कोई काम देते हैं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कब होगा, जब हम उसको सफिशेंट अथॉरिटी भी देंगे. तभी विदाउट अथॉरिटी ही विल नॉट फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साथ साथ चलती हैं. और अथॉरिटी आपकी डाउनवर्ड होती है क्योंकि अथॉरिटी आपको कौन देता है, बॉस. और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपवर्ड, आप अपने बॉस को काम करके देना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपवर्ड होती है. इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर हम अथॉरिटी देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो इससे क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट. इससे अपना टारगेट अचीव करेंगे. सेकेंडली एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर
देयर इज़ अ इक्वल प्रोपोर्शनेट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इक्वल होनी चाहिए, ना तो अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ना ही अथॉरिटी कम हो। अगर अथॉरिटी इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अ सबॉर्डिनेट विल मिस यूज़ हिज अथॉरिटी, और अगर अथॉरिटी कम होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देन ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तो देयर इज़ ऑलवेज 1:1 रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज़ डिसिप्लिन। It means rules and regulations which are formed by company to successful working of the organization, जिसमें superior subordinate सब जो rules बने हुए हैं कंपनी के उसको वो obey करें और successfully कंपनी काम करे। एंड डिसिप्लिन इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर द यूनिवर्सल, ये हर जगह यूज़ होते हैं। डिसिप्लिन आप देखें स्कूल में डिसिप्लिन, हॉस्पिटल्स में, क्लब्स में डिसिप्लिन, अगर आपकी फैक्ट्री है वहाँ पर भी डिसिप्लिन है, आने जाने का टाइम प्रॉपर आप डिसाइड करते हैं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन आप डिसाइड करते हैं। तो डिसिप्लिन इज़ एप्लीकेबल इज़ एवरीवेयर। और इसका पॉजिटिव क्या है कि एक जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेटर रेपुटेशन होती है लोगों के बीच में, और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि वो डिसिप्लिन में काम करेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे रिसोर्सेज का, और देयर इज़ अ बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, और अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा मैनेजमेंट और लेबर का। फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। इट इज़ बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल, वन मैन वन बॉस। स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन विद दिस प्रिंसिपल, वन मैन वन बॉस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स कि एक टाइम पर एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे। अगर एक टाइम पर एक से ज़्यादा सुपीरियर उसको ऑर्डर देंगे तो ही विल बी कन्फ्यूज्ड कि मैं किसका काम पहले करूं। यहाँ पर राइट अप्रोच भी बनी है डायग्राम में और रॉन्ग अप्रोच भी। रॉन्ग अप्रोच में आप देख सकते हैं कि एक जो मैनेजर है M1 S2 को ऑर्डर दे रहा है और सेम टाइम पर M2 भी S2 को ऑर्डर दे रहा है, और जो S2 का मतलब सबॉर्डिनेट, वो कंफ्यूज हो गई मैं कौन से मैनेजर की पहला काम करूं, M1 या M2 का। तो इस सिचुएशन में हमेशा जो सबॉर्डिनेट क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस। एक टाइम पर एक बॉस ही ऑर्डर देगा सबॉर्डिनेट को, और वो सबॉर्डिनेट उस काम के लिए अपने उसी बॉस के लिए क्या रहेगा, अकाउंटेबल होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर हम ये यूज़ करते हैं प्रिंसिपल, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन सिचुएशन, और जो सबॉर्डिनेट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। और इस सबॉर्डिनेट्स नोज वेरी वेल कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है, मतलब उसने किसको आंसर देना है अपने काम का। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर इज़ अ वन हेड वन प्लान। अगर कंपनी बहुत सारे प्लान बनाती है तो हर एक प्लान का कंपनी एक हेड बनाएगी, और उस हेड के जो नीचे जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस अपने हेड को फॉलो करें। ये प्रिंसिपल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है एक से ज़्यादा, और हर एक प्रोडक्ट का जो नेचर है वो अलग अलग है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ होंडा। होंडा कंपनी 2 व्हीलर भी बनाती है, होंडा कंपनी 4 व्हीलर भी, लेकिन उन दोनों के उसने हेड अलग अलग रखे हुए क्योंकि दोनों की मार्केट अलग अलग है। कभी भी आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की मार्केट को आपस में कंपेरिजन नहीं कर सकते। दिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? It increase the efficiency of the organization, and with the help of this principle we can easy to achieve the objectives, and it helps in coordination due to the unity in activities. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मिलकर काम करेंगी। अब जैसे कि मैंने अभी होंडा वालों का एग्जांपल दिया, जो कार वाली यूनिट है वो सारे मिलकर काम करेंगे, और बाइक वाले डिपार्टमेंट वाले मिलकर काम करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो गिवन डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपका, यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट मीनिंग मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग वन मैन वन बॉस, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन हेड वन प्लान। और इसका मेन एम क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का? इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन को ड्यूल होने से बचाता है। ड्यूल का मतलब कि उसके एक टाइम पर 2 मैनेजर्स ना हो, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ओवरलैप ना हो। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था, कार का जो परचेज मैनेजर है ही इज़ ओनली परचेजिंग द स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार, ही विल नॉट परचेज द स्पेयर पार्ट्स ऑफ बाइक, क्योंकि पता है कि बाइक वाले का परचेज डिपार्टमेंट अलग है। थर्ड इज़ इम्प्लीकेशंस। यूनिटी ऑफ कमांड जो अप्लाई होता है एक सिंगल एम्प्लॉय के ऊपर, इंडिविजुअल एम्प्लॉय, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी के ऊपर हमारा ये अप्लाई होता है। सिक्स्थ इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि अगर किसी भी मैनेजर को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको प्रायोरिटी किसको देनी है? कंपनी के इंटरेस्ट को। इट मीन्स जिसमें कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो। समटाइम्स ही शुड सेक्रीफाई हिज पर्सनल इंटरेस्ट। For example, X is a purchase manager who have full authority to purchase the
रॉ मटेरियल, और वही रॉ मटेरियल उसके बेटे से भी मिलता है, ही इज़ आल्सो सप्लायर इन द मार्केट, और उसके बेटे से जो वो रॉ मटेरियल मिलता है वो महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर सप्लायर। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मैं अपने बेटे से सामान खरीद देता हूँ तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, बट दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. The company will incur heavy loss. So according to this principle, we must take all those decisions where we must given priority to the organized interest, not individual interest. Positive effect, everybody profit in the profit of the company. हर एक पर्सन का प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा तो वो अपने वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी भी देगी, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमारा इससे अचीव होगा, और कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव के बीच में. ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था. मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जिसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. 7th इज रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स हमें अपने एम्प्लॉय को फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए सो दैट दे कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमें अपने जो गेन है, प्रॉफिट है, वो भी शेयर करना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, और जिससे कि वो सेटिस्फाई रहेंगे. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी या वेजेस नहीं देंगे तो फिर वो मन लगा के काम नहीं करेंगे, और जो अच्छे लेबर हैं और वर्कर्स हैं वो काम छोड़कर चले जाएंगे. पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय विल एनकरेज एंड सेटिस्फाइड एंड दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन. वो मन लगा कर काम करेंगे, एंड देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेशो, और वो काम छोड़कर नहीं जाएंगे. लास्ट 8th जो हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज़ द सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारी पावर अपने पास रखना, और व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने सबॉर्डिनेट में. तो ना तो हमारी कंपनी फुली सेंट्रलाइज्ड हो और ना ही कंपनी फुली डिसेंट्रलाइज्ड हो. सारी पावर हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और ना ही सारी पावर हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट में. तो देयर इज़ अ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. इट मीन्स इंपॉर्टेंट पावर अपने हाथ में रखना और लेस इंपॉर्टेंट पावर अपने सबॉर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. दिस इज़ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज प्लान बनाना, इट इज़ डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. और सेकेंडली, परचेज करना रॉ मटेरियल या फिर एम्प्लॉयज़ को लीव ग्रांट करना, तो ये जो टॉप लेवल वाले खुद नहीं करते, ये मिडिल लेवल को ग्रांट करते हैं अथॉरिटी. दे शुड बी डेलीगेटेड टू देयर सबॉर्डिनेट. पॉजिटिव इफेक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाता है, एंड दे कैन टेक बेटर एंड क्विक डिसीजन, एंड सबॉर्डिनेट विल आल्सो टेक बेटर एंड क्विक डिसीजन बिकॉज दे हैव पावर, एंड इंक्रीज इन एनकरेजमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. इससे सबॉर्डिनेट्स एनकरेज होते हैं. तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 8 principles. I hope you understood it clearly. In next section we discussed our 6 remaining principles and 4 scientific principles. Thank you, students.